سمندر کنارے بسنے والے شہر قائد کے باسی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ کورنگی 6 نمبر میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ مہنگائی کے اس دور میں بھی مکین پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورنگی نمبر 6 الیاس گھوٹ کے مکین بدترین آبی بحران کا شکار، سینکڑوں گھرانے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ مکینوں نے شکوہ کیا کہ کئی ماہ سے پانی فراہم نہیں کیا جا رہا، کھارا پانی پینے کے باعث بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ کئی مکین پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ پینے میں بھی وہی کھارا پانی کیسے تیسے کر کے استعمال ہو رہا ہے، موشن، الٹی ہیں، بچوں کو ڈائریا، پتہ نہیں کس کس چیز، کبھی 3 بھی کبھی 4 بھی، اور پھر بورنگ کا ٹینک میں پانی بھروا، کبھی 2 بھی۔ بچے تو اسکول نہیں جا پاتے، کیسے جائیں گے گندے میلے؟ وہی بات ہے کہ پانی ہوگا تو بچے جائیں گے نا صاف۔ گرمی کے اندر بچے روزانہ نہانے دھونا ہوتا ہے، چلو بڑے ایک دن نہائیں گے، دوسرے دن تو نہائیں گے نا، بڑے بچوں کے لیے خرچہ چاہیے نا۔ غریب طبقہ ہے یہ، پانی بند کرا ہوا ہے، گیس نہیں ہے، سلنڈر جلاتے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے مزید کہا کہ علاقے کو ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ علاقہ مکینوں نے حکومت اور متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ علاقے میں پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کورنگی 100 کوارٹر کے قریب جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے، مکینوں کا رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ مکینوں نے حکومت اور متعلقہ حکام سے علاقے میں صفائی ستھرائی کے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ شاہد کی رپورٹ۔ انتظامیہ کی نااہلی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ شہر قائد میں ہر طرف گندگی کے ڈھیر اور ٹوٹی پوٹی سڑکیں انتظامیہ کی کارکردگی کی داستان سنانے لگی۔ کورنگی 100 کوارٹر کا بھی برا حال ہو۔ مکین کہتے ہیں سڑکوں سے گزرنا کسی امتحان سے کم نہیں، بدبو اور تعفن بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں۔ ہر جماعت ووٹ کے لیے آتی ہے اور جیتنے کے بعد کسی کی کوئی خبر نہیں۔ باب اختیار جو ہے نا، وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں رہتے، غریب لوگ ہیں نا کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا حال یہ دیکھ نہیں ہے، یہ آپ کام کرنے والے ادھر کاروبار ان کا ٹھپ پڑا ہوا ہے، بالکل کوئی آتا ہی نہیں ہے، گاہک ہی نہیں آتا ادھر دنیا۔ یہ ابھی تو پانی بند کیا ہوا ہے، ورنہ جب پانی چالو کرتے ہیں تو یہ دنیا بھر کی نہر اور ندی کی طرح یہ یہاں سے بہتا ہے پانی۔ نہ تو کوئی دیکھنے والا، اور واٹر بورڈ والے یہاں پہ پانی کی لینے بیچتے نکال کے لوگوں کو، واٹر بورڈ والے نا پانی کے لینے بیچتے ہیں۔ جو پوزیشن یہاں کی نظر آ رہی ہے نا، اس سے زیادہ خستہ حالی ایریا میں تھی، ٹھیک اس کے پیچھے، اور یہ یکم رمضان سے، یعنی کہ رمضانوں سے پہلے سے یہ پوزیشن تھی کہ یہاں گٹر بھرے ہوئے تھے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، آپ بائک پر بھی سفر نہیں کر سکتے تھے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ صوبائی حکومت اور بلدیاتی ادارے علاقے کی صورتحال پر توجہ دیں اور گندگی سے نجات دلائیں۔ کیمرامین حارث کے ساتھ اقصیٰ شاہد T21۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پر سالانہ 14.5 ارب روپے خرچ کیے جانے کے باوجود شہر میں صفائی کا فقدان ہے۔ اہم شاہراہوں سمیت بلدیہ ٹاؤن کے قبرستان بھی کچرے کی زد میں آ گئے۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ کچرے نے شہر قائد کے مکینوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ کراچی کے رہائشی و کمرشل علاقوں کے ساتھ بلدیہ ٹاؤن کے مسلم اور مسیحی قبرستان بھی کچرے سے بھر گئے۔ 7 نمبر کے قبرستان کے اندر کچرا کنڈی ہفتوں بعد صاف کی جاتی ہے، جبکہ سیکٹر D3 کے مسیحی قبرستان کے طرف کچرے کا پہاڑ موجود ہے، جو اطراف کے رہائشیوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ مہینوں یہاں پڑی رہتی ہے اور کوئی اس کا حال سان نہیں ہے، پڑے رہتے لوگ، بیماریوں کا شکار، بچے یہاں بیمار، گندگی، مکھیاں، مچھر۔ یقین کرو ہمارا جینا یہاں جو ہے محال ہوا، مگر گورنمنٹ کو کوئی اس پہ جو ہے نا فکر نہیں ہے، بس وہ اپنے چکروں میں لگے ہوئے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم لوگ انسان ہیں، کیسے رہ رہے ہیں۔ آفریدی کالونی میں بھی کچرا اٹھانے اور سڑکوں پر جھاڑو لگانے کا عمل خواب بنا ہوا ہے۔ سٹی 21 کی نشاندہی پر رشید آباد کی کچرا کنڈی صفائی کے بعد دوبارہ کچرے سے بھر گئی، جس کی وجہ عملے کو مکمل ادائیگی نہ کیا جانا بتایا جاتا ہے۔ جی بھائی، یہ رشید آباد کا علاقہ ہے، رشید آباد بلدیہ ٹاؤن۔ آپ لوگ اس دن انٹری آپ نے پوچھا تھا، اس کے بعد ایک مرتبہ صفائی ہوئی تھی، اس کے بعد پھر غائب ہو گئے۔ بار بار توجہ دلانے کے باوجود بلدیہ ٹاؤن میں صفائی کا نظام بہتر بنایا جا رہا ہے اور نہ ہی غفلت کے مرتکب عملے کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ کیمرامین عمران خان کے ہمراہ رضوان احمد، City 21۔ انتظامیہ کی غفلت سے شہر قائد کی شاہراہیں اذیت کا سبب بن گئیں۔ حسن سکوائر سے لیاقت آباد 10 نمبر جانے والی شاہراہ خستہ حالی کا شکار ہے۔ کئی ماہ گزر جانے کے بعد بھی سڑک کی مرمت نہ ہو سکی۔ شہری کہتے ہیں کہ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ سے ٹریفک جیم اور حادثات معمول بن گئے۔ ہمنا نثار کی رپورٹ۔
कराची की सड़कों का कोई वाली वारिस न रहा। शहर के मुतादिद सड़कों की तरह हसन स्क्वायर से लियाकताबाद 10 नंबर जाने वाली शाहराह टूट गई। सड़क पर 3 से 4 जगह कारपेंटिंग गायब। कई माह गुजर जाने के बाद भी मरम्मत नहीं हुई। जिबा हाल सड़कों से पीपल्स बस सर्विस रूट 3 की गाड़ियां भी गुजरती हैं। सड़क के बाइस दिन में ट्रैफिक जाम, रात के औकात में हादसा होने लगे। शहरी कहते हैं ट्रैफिक जाम में जुराइम पेशा अफराद को वारदात करने का मौका मिल जाता है। सड़क पर रोज लोग गिरते हैं और कई लोग हादसा में जाँ बहाक भी हुए हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। ये लाइन यहाँ पे पानी की है और पानी काफ़ी भर जाता था, तो उसकी वजह से इन्होंने गवर्नमेंट ने जो भी काम करा, मगर उसके बाद इस पर कारपेटिंग नहीं करी, जिसकी वजह से बेशुमार हादसे हो चुके हैं, लोग अपनी जान भी दे चुके हैं। और स्नैचिंग का भी बड़ा मामला यहाँ पर, रात को अंधेरा हो जाता है, कोई भी अगर ट्रैफिक जैम हुआ तो यहाँ पे स्नैचिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से गुजरना इतना मुश्किल है। आप देखिए ये सारे रोड टूटे हुए हैं। इस साइड पे देख लें, कई हादसे हो चुके हैं। इधर बस वाले आए, रिक्शे वाले ने मार दिया, खातून हुई है, इधर शहीद, एक बच्चा शहीद हुआ है। शहरियों का मुतालबा है इंतजामिया सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत कराए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ हमना निसार, सिटी 21। कहेंगे चिकन, मटन और बीफ के बाद सब्जियों की खरीदारी भी जेब पर भारी। मुनाफाखोरों की मनमानियाँ। अदरक लहसुन 800 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। नींबू 600 रुपये फ़ी किलो में बेचा जाने लगा। हंडिया का लाजमी जुज़ प्याज 220, टमाटर 10 रुपये इजाफे से 160 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। फलों के निर्ख भी आसमान पर। सेब 40 रुपये इजाफे से 350 फ़ी किलो में फरोख्त। केला, अमरूद और चीकू 200 रुपये में दस्तयाब। शहरियों का हुकाम बाला से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा। लियारी नयाबाद यूसी 11 में बदतरीन गैस मसाइल। इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। गैस की किल्लत ने लकड़ियों और गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। इलाका मकीन कहते हैं कि सुई सदन के ऑफिस के चक्कर लगाते आजिज आ चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। गैस की किल्लत के बायस गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जिसकी वजह से अखराजात बढ़ गए हैं। लाइनों से गैस की बजाय पानी निकलता है, पानी भी वो ऐसा कि फुल ब्लैक गटर का पानी निकलता है। तो बहरहाल ये पूरा निज़ाम ही ऐसा हुआ है, कोई मसले का हल नहीं। महीने का 2500 बिल आया है, फिर क्या कहाँ से भरे? 1.5 साल से हमने गैस की शिकल नहीं देखी है। कौन सी शिकल है? गैस सिलेंडर भरवाते 300 में 2 दिन के बाद। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस मसाइल को हल करके उनकी मुश्किलात को कम किया जाए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मेयर कराची ने शहर में तरक्याती काम जल्द मुकम्मल कराने के अज़्म का इजहार किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हमारे इदारे दहशत गर्दों से हर वक्त मुकाबले को तैयार हैं। MQM के दौर में साहने बल्दिया फैक्ट्री जैसे हादसा देखे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में। कराची में तरक्याती तेज हो गए। मेयर कराची ने खुशखबरी सुना दी। मुर्तज़ा वहाब ने खारा दर मच्छी मियानी मार्केट और अतराफ में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मेयर कराची का कहना था कि 40 मिलियन से जायद की लागत से ओल्ड सिटी एरिया के अतराफ की सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। कराची की तामीर और तरक्की पीपल्स पार्टी का विजन है। पीपल्स पार्टी वादे तौर पर इस नियत के साथ आगे बढ़ रही है कि काम करना, लोगों के मसाइल हल करना, लोगों की खिदमत करना हमारी इंतखाबी मंशूर का सबसे अहम जुज़ था। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन जो है वो इसी जद्दोजहद में लगा रहेगा। PTI को कंफ्यूज जमात करार देते हुए मेयर कराची का कहना था कि रियासत मुखालिफ PTI बयानिए की मजम्मत करता हूँ। अगर मुल्क को नुकसान होगा तो हम सबको नुकसान होगा। ये कंफ्यूज सियासी जमात है, इनको ये पता नहीं है कि कब क्या बात करनी होती है, कब किस बात पर खड़ा होना होता है। ये लोग सिर्फ यू टर्न की सियासत पर बिलीव करते हैं। जिनका लीडर ये काम करता था तो उनके पैरोकार भी यही काम करेंगे। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हमें हमेशा अपने बयानों में इस बात को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि कभी कभार हमारे किसी सियासी शरपसंद बयान की वजह से रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। अगर रियासत को नुकसान पहुंचेगा तो हम सबको नुकसान पहुंचेगा। MQM के अपोजिशन लीडर की जानिब से लगाए गए इल्जामात को शर्मनाक करार देते हुए मेयर कराची का कहना था कि पक्के के डाकुओं को हमने कंट्रोल कर लिया है, कच्चे के डाकुओं से भी निपट लेंगे। शहर का अमन तबाह करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन वाहिद अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। KMC और टाउन हुकूमतों के रिटायर्ड मुलाजमीन की सुन ली गई। फाइनेंशियल एडवाइजर ने तरबियत के लिए टाउन हुकूमतों से अमला तलब कर लिया। सौदाकार यूनियन के सदर जुल्फ़िकार शाह कहते हैं टाउन्स के फंड में इजाफे के बगैर मामला हल नहीं हो सकता। रिजवान अहमद की रिपोर्ट।
KMC और टाउन हुकूमतों के रिटायर्ड मुलाजमीन की किस्मत जाग गई। बल्दिया उस्मा कराची के फाइनेंशियल एडवाइजर ने रिटायर्ड और इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के लिए टाउन से अमला तलब कर लिया, जिन्हें तरबियत फराहम की जाएगी। ये साबिक मुलाजमीन और उनके अहले खाना 16 अक्टूबर 2023 से अदायगियों के मुंतजिर हैं। हमें 2023 में रिटायरमेंट हो गए। इसमें ना अपना KMC ले रही है केस, हम बीच में टंगे हुए। अभी पहले जो वजूहात मिलते थे, तनख्वाह होता था कि चल जाता घर, अभी तनख्वाह ये 10वां महीना हो गया ऐसे ही बैठे हुए। भाई सदर टोन से जो रिटायर हुआ था मेरा भाई, जब से अभी पेंशन वगैरह उसको कहीं ना सदर टोन वाले दे रहे हैं ना KMC वाले दे रहे हैं, ये 1 साल से ऊपर हो गया है। सजन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह बोले, फैसला खुश आइंद है मगर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर मौजूद हैं, क्योंकि TMCs के फंड में इजाफे के बगैर सारी प्रैक्टिस बेकार है। मेयर साहब जो हमसे हमारे साथ मीटिंग हुई थी तमाम यूनियंस के साथ, तो उसमें तय हुआ था कि कट ऑफ डेट बनेगी, कट ऑफ डेट दी जाए ताकि उसमें सबसे पहले तो जब तक के जो रिटायर्ड मुलाजिम हैं उनके केसेस मंगवाए जाएँ, और इसके साथ साथ पहले और दूसरा मसला ये है कि इसके लिए अगर आपने TMCs में भेजना है तो सबसे पहले TMCs की ग्रांट में इजाफा किया जाए, 23,000 पुराने पेंशनर का मसला हल किया जाए। KMC और TMCs के साबिक मुलाजमीन पहले ही 2016 से मजमूई तौर पर अरबों रुपए के वाजिबात से महरूम और बकायाजात मिलने की उम्मीद लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। कैमरामैन इमरान AK के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के 2 रुकनी सऊदी वफ्द का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। जिना एयरपोर्ट कायम मकाम मैनेजर ने सऊदी वफ्द को ब्रीफिंग दी। सऊदी वफ्द ने एयरपोर्ट लाउंज का जायजा भी लिया। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के हवाले से सऊदी कौंसल जनरल के हमरा 2 रुकनी वफ्द का दौरा। जिना एयरपोर्ट के कायम मुकाम मैनेजर ने सऊदी वफ्द को ब्रीफिंग दी और लाउंज का मुआयना कराया। सऊदी वफ्द ने सरकारी अफसरान और इंतजामिया से मुलाकात भी की। सऊदी वफ्द की प्रोसेसिंग ज़रूरियात और तरीक़ेकार के तयन के लिए टेक्निकल टीम से भी मुलाकात शामिल रही। दौरे का मकसद इमिग्रेशन सहूलियात को हतमी शक्ल देने की कोशिशों का हिस्सा है। जिना इंटरनेशनल में लाउंज हॉल टर्मिनल हतमी तौर पर मुख्तस होने के बाद वहां सऊदी एहलकार काउंटर्स और आलात लगा सकेंगे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहले ही कामयाबी से निफाज हो चुका है। साल 2017 में सऊदी वजारत दाखिला ने तरीक मक्का प्रोग्राम का आगाज किया था, जिसका मकसद हज्जाज के वीजा, इमिग्रेशन समेत तमाम दस्तावेजी मामलात उनके ममालिक में ही मुकम्मल कर लिए जाएंगे और वो सऊदी अरब आने के बाद बगैर किसी रुकावट के अपनी आर्जी रिहाइशगाह की तरफ रवाना हो जाएंगे। खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। मेंथोल आइस, लेमन एंड विटामिन C, एलोवेरा। फाइजा फेस वॉश से लो पूरे एतमाद लो। कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना के बाद जदीद तरीन पीपल्स बस सर्विस अब आमों के शहर मीरपुर खास में भी 20 अप्रैल से आगाज हो चुका है। पहले फेज में पीपल्स बस सर्विस का रूट मीरपुर खास बस स्टैंड से जरवार शाख तक है। रिंग रोड, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, DC ऑफिस, चार मीनार चौक, स्टेशन रोड, ओल्ड बस स्टैंड, चांदनी चौक और आसपास के मुसाफिर मुस्तफीद हो रहे हैं। नई जहतें, नए रंग, आराम व जिद्दतों के संग, खिदमत में सबसे आगे महकमे ट्रांसपोर्ट, हुकूमत सिंध। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत को डी रेगुलराइजेशन करने की तैयारी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की डी रेगुलराइजेशन की सख्ती से मुखालफत करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है। एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी कहते हैं कि पेट्रोलियम सेक्टर के डी रेगुलराइजेशन के अमल से महंगाई का खौफनाक तूफान आएगा। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में।